चलिए थ्योरम लिखिए इफ f belongs to Riemannian integrable closed interval AB, if f belongs to R closed interval AB, then also mod of f belongs to Riemannian integrable closed interval AB. Then also mod of f belongs to Riemannian integrable closed interval AB, and integral a to b fx dx is less than or equal to integral a to b mod of fx dx. लिखिए if f belongs to Riemannian integrable closed interval AB, then also mod of f belongs to Riemannian integrable closed interval AB, and नीचे वाली कंडीशन डालिए प्रूफ लिखिए सिंस f belongs to Riemannian integrable closed interval AB, since f belongs to Riemannian integrable closed interval AB, therefore f is bounded on closed interval AB. Therefore f is bounded on closed interval AB. नीचे से लिखिए that is there exists a positive number k, that is there exists a positive number k, small k, such that mod of fx is less than or equal to k for every x belongs to closed interval AB. नीचे से लिखिए by definition mod of fx is equal to mod of fx. This implies that mod of fx is equal to mod of fx is less than or equal to k for every x belongs to closed interval AB, क्योंकि k कैसा है, बाउंडेड है. लिखिए नीचे से लिखिए इट शोज दैट mod of f is also bounded on closed interval AB. It shows that mod of f is also bounded on closed interval AB. नीचे से लिखिए since f belongs to R closed interval AB, since f belongs to R closed interval AB, नीचे से लिखिए therefore for a given epsilon greater than 0, therefore for a given epsilon greater than 0 there exists a partition P of closed interval AB, there exists a partition P of closed interval AB such that UPF minus LPF less than epsilon, equation number 1. फिर लिखिए लेट MR MR एंड MR डैश कैपिटल MR डैश be the infimum and supremum of the function, be the infimum and supremum of the function fx and mod of fx respectively, fx and mod of
fx respectively on the subinterval IR is equal to XR minus 1 comma XR on the subinterval IR is equal to closed interval XR minus 1 comma XR, then for every x comma y belongs to IR comma we have, then for every x comma y belongs to IR comma we have mod of fx minus mod of fy is less than or equal to mod of fx minus fy, और इसका मतलब mr डैश माइनस mr डैश लेस देन और इक्वल टू mr माइनस mr। इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट समेशन mr डैश माइनस mr डैश डेल आर का मल्टीप्लाई किया आर की वैल्यू 1 to n लेस देन और इक्वल टू समेशन mr माइनस mr डेल आर का मल्टीप्लाई किया r इज इक्वल टू 1 to n। दिस इम्प्लाइज दैट इसको इसके साथ लेंगे तो u p मॉड ऑफ f माइनस l p मॉड ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू u p f माइनस l p f, और u p मॉड ऑफ f माइनस l p मॉड ऑफ f इज लेस देन एप्साइलन। लिखिए इतना। नीचे से लिखिए, इट शोज दैट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। इट शोज दैट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर मॉड ऑफ f belongs to RAB। It shows that condition of integrability is satisfied and therefore mod of f belongs to RAB। नीचे से लिखिए, फर्दर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी कॉमा वी हैव, फर्दर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी कॉमा वी हैव मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा माइनस एफ एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम इसके बराबर है, इसका मतलब एफ एक्स छोटा और बराबर होगा मॉड ऑफ एफ एक्स के, एंड माइनस एफ एक्स भी छोटा और बराबर होगा मॉड ऑफ एफ एक्स के। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल a to b fx dx इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a to b मॉड ऑफ fx dx, एंड दूसरा वाला लिखेंगे तो इंटीग्रल a to b माइनस fx dx इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a to b मॉड ऑफ fx dx। दिस इम्प्लाइज दैट कंबाइंड करते ही आपको मिल जाएगा कंबाइंड करते ही आपको मिलेगा मॉड में इंटीग्रल a to b fx dx इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल a to b मॉड ऑफ fx
dx। देखिए क्या हुआ, यही वैल्यू, ये वैल्यू आपकी कॉमन है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो मॉड में ये वैल्यू सेम वैल्यू है, एक बार ये इससे छोटी हो रही है और एक बार बड़ी हो रही है, तो ये मॉड में आ गया और ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू इतना। उतार लीजिए। उतारिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। लिखिए इसमें स्टेटमेंट, लिखिए इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, if fx is continuous on closed interval ab, then there exists a point c belongs to closed interval ab, then there exists a point c belongs to closed interval ab such that integral a to b fx dx is equal to b minus a fc। ये थ्योरम मैंने कल आप लोगों को कराया है, बस अब नाम चेंज कर दिया है। इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। प्रूफ में लिख लीजिएगा फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें प्रूफ में लिख लीजिएगा फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। 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 डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर, if fx and gx are two continuous function, if fx and gx are two continuous function on closed interval ab, on closed interval ab such that gx greater than 0, such that gx greater than 0 for every x belongs to closed interval ab, for every x belongs to closed interval ab, then there exists a point c, then there exists a point c belongs to closed interval ab such that integral a to b fx gx dx is equal to fc integral a to b gx dx। इसको कहते हैं, इस थ्योरम को हमने जनरलाइज्ड कर दिया, जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए क्या कह रहा है, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है। एफ एक्स के बारे में हमको अब और कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जी एक्स कहा है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा।
तब कह रहा है कि कोई पॉइंट सी इसमें पाया जाएगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देयरफॉर, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा देयरफॉर it is bounded on closed interval AB. Therefore, it is bounded on closed interval AB. नीचे से लिखिए, let small n and capital M, let small m and capital M be the infimum and supremum of fx, be the infimum and supremum of fx on closed interval AB respectively, on closed interval AB respectively, then m is less than or equal to fx is less than or equal to capital M for every x belongs to closed interval AB। ये रिलेशन पीछे आपको बताया गया था इन्फीमम और सुप्रीमम के केस से। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखिएगा। सिंस कह रहा है gx इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB, दिस इम्प्लाइज दैट, पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं डालेगा, एज सच मिलेगा m इंटू gx। This implies that integral a to b m gx less than or equal to integral a to b fx gx dx less than or equal to integral a to b m gx dx. This implies that m बाहर आएगा, इंटीग्रल a to b gx dx less than or equal to integral a to b fx gx dx less than or equal to m integral a to b gx dx for every x belongs to closed interval AB। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। नीचे से लिखिए, हैंस देयर एग्जिस्ट अ नंबर म्यू, हैंस देयर एग्जिस्ट अ नंबर म्यू बिटवीन, जैसे पीछे किया था, स्मॉल एंड कैपिटल M, सच दैट, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर म्यू बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल M सच दैट इंटीग्रल a to b fx डॉट gx dx इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रल a to b gx dx, जहाँ आपका म्यू स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई कर रहा है। लिखिए, नीचे से लिखिएगा, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फुल स्टॉप, देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देयरफॉर
by intermediate value theorem there exists a point C belongs to closed interval AB such that mu is equal to FC and hence integral a to b fx gx dx is equal to fc integral a to b gx dx। यही आपको प्रूफ करना था। ये सब थ्योरम्स आपस में सेम टाइप के सेम तरीके से प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रल फंक्शन, हेडलाइन डालिए इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शन लिखिए लेट एफ बी अ फंक्शन इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इंटीग्रल फंक्शन की डेफिनेशन बताई जा रही है। लेट एफ बी अ फंक्शन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट स्मॉल एफ बी अ फंक्शन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे इंटीग्रेबल है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे रिमानियन इंटीग्रेबल है, मतलब लोअर रिमानियन इंटीग्रल अपर रिमानियन इंटीग्रल के बराबर आएगा। then the function capital F on closed interval AB, then the function capital F on closed interval AB given by fx is equal to integral a to x ft dt, जहाँ x a to b के बीच में लाई करेगा। नीचे से लिखिए इज कॉल्ड द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ। जैसे इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ का मतलब एफ का इंटीग्रेशन ले लीजिए विद इन अ गिवन रेंज और एक फंक्शन अलग फंक्शन के बराबर दिखा दीजिए, तो जो नया फंक्शन होगा वही इंटीग्रेबल फंक्शन कहलाता है अपने इस ओल्ड फंक्शन का। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। एक्चुअल फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लीजिए ओवर अ गिवन रेंज और जो फिर फंक्शन नया बनता है that is called integrable function of the given old function। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए इफ f is Riemannian integrable, if f is Riemannian integrable on closed interval AB, if f is Riemannian integrable on closed interval AB, then the integral function capital F of small f, then the integral function capital F of small f is given by fx is equal to integral a to x ft dt। a is less than or equal to x is less than or equal to b। if f be a function integrable over closed interval ab, then the function f on closed interval ab is given by इतना is continuous on closed interval ab। मतलब आपको दिया स्मॉल एफ रिमानियन इंटीग्रेबल है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ का रिमानियन इंटीग्रल फंक्शन है,
तो आपको दिखाना है कि कैपिटल एफ भी कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे। कैपिटल एफ कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, मतलब वो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले जाएगा। लिखिए, प्रूफ में लिखिए सिंस एफ इज रिमानियन इंटीग्रेबल, सिंस f is Riemannian integrable on closed interval AB, since f is Riemannian integrable on closed interval AB, therefore it is bounded on closed interval AB. Therefore it is bounded on closed interval AB. Therefore it is bounded on closed interval AB. नीचे से लिखिए hence there exists a positive number capital M such that mod of ft is less than or equal to M for every t belongs to closed interval AB. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नीचे से लिखिए लेट a is less than or equal to x1 is less than or equal to x2 is less than or equal to b. Let a is less than or equal to x1 is less than or equal to x2 is less than or equal to b. Then we have चलिए किसको कंटिन्यूस दिखाना है? f को। 2 पॉइंट्स हमने ले लिया x1 और x2, करके देखा जाए कि ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मॉड इसकी वैल्यू आएगी a2x1 ft dt माइनस a2x2 ft dt बल इज इक्वल टू इंटीग्रल a2x1 ft dt। चेंज कर दीजिए लिमिट को, माइनस आएगा प्लस x2 टू a ft dt इज इक्वल टू मॉड, लिमिट देखिएगा ये कैंसिल होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? x2 से x1 ft dt इज लेस देन और इक्वल टू, थ्योरम कराए थे, x2 से x1 मॉड ऑफ ft dt. This implies that mod of fx1 minus fx2 is less than or equal to m x1 minus x2 from equation number 1. भाई इसकी वैल्यू हमने m रख दी, ये बाहर हो जाएगा। 1 को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, t आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मॉड में x1 माइनस x2, इसको मान लीजिए 2, और यहाँ हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और नहीं समझ में आता है तो लेस देन x2 टू x1 m dt, अब समझ में आएगा। फिर देखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट, हम मान ले रहे हैं x1 माइनस x2 लेस देन है एप्सिलॉन बाई m से, देन वी हैव, इस केस में आपको मिलेगा मॉड fx1 माइनस fx2 इज लेस देन m इंटू एप्सिलॉन बाई m, दैट इज एप्सिलॉन। ऐसा कब हुआ? वेन एवर, ऐसा तब हमको मिला है जब मॉड x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन बाई m होगा। फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB, दिस इम्प्लाइज दैट fx1 माइनस fx2 मॉड में लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा तब हो रहा है वेन एवर मॉड x1 माइनस x2
लेस देन डेल्टा वेयर x1, x2 क्लोज्ड इंटरवल ए बी में होगा और डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई m होगी। उतारिए इतना। चूँकि ये x1 और x2 सेम टाइप के पॉइंट्स हैं तो आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को शो करता है। अगर x और a लेते जहाँ a फिक्स पॉइंट होता, x आपका वेरिएबल पॉइंट होता, तो इस केस में आप लोग इसको कंटिन्यूटी कहते हैं। लेकिन ये दोनों यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरीके का पॉइंट है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को शो करेगा। और कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस होता है। लिखिए इतना, फिर नीचे से लिखिए। नीचे से लिखिए, इट शोज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स है। इट शोज दैट द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इट शोज दैट द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and hence it is continuous on closed interval AB and hence it is continuous on closed interval AB। नीचे लिखिए रिमार्क, इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछता है वो लिखिए। रिमार्क लिखिए, द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन, द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन is continuous. The integral of an integrable function is continuous. The integral of an integrable function is continuous. Next theorem लिखिए। Next theorem लिखिए, let f be a continuous function on closed interval AB। Let f be a continuous function on closed interval AB, small f be a continuous function on closed interval AB and let capital Fx is equal to integral a to x ft dt a is less than or equal to x is less than or equal to b, then f dash x is equal to fx। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f dash x डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, इसलिए fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b। लिखिए, देखिए क्या कह रहा है कि स्मॉल f कंटिन्यूअस फंक्शन है, साथ ही साथ ये इंटीग्रेबल फंक्शन भी है। तो उस केस में आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लेट x belongs to closed interval AB is fixed, choose h does not equal to 0, choose h does not equal to 0 such that
x प्लस एच करने पर वो भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में पाया जाए, सच दैट x प्लस एच बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। नीचे से लिखिए देन वी हैव ब्लैक बोर्ड पे देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसके डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन लगा रहे हैं, अपॉन एच करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेते हैं तो एफ डैश एक्स मिलता है, उसी डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस एच एफ टी डी टी माइनस ए टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, पीछे बताएं चेंज करते ही एक्स टू ए एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए टू बी बी टू सी, तो मिलेगा एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ करती थी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू, टी के लिए है एच को बाहर रखेंगे, एक्स एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स, इस डेफिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू मॉड 1/h इंटीग्रल एक्स एक्स प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे अगर आप, तो मिलेगा इंटीग्रल एक्स, ये थोड़ा सा कैपिटल एफ एक्स कर लीजिए, कैपिटल एफ एक्स, तो एक्स एक्स प्लस एच एफ टी डी टी। ये x कर दीजिए, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में 1/h इंटीग्रल, फिर वही चीज़ x टू एक्स प्लस एच करली ब्रैकेट में एफ टी माइनस एफ एक्स डी टी इज लेस देन और इक्वल टू 1/h इंटीग्रल x टू एक्स प्लस एच मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, इक्वेशन नंबर 1। ये एफ एक्स का नीचे से लिखिए
लिखिए सिंस एफ टी इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, since ft is continuous on closed interval ab, since ft is continuous on closed interval ab, नीचे से लिखिए therefore for an arbitrary epsilon greater than 0, therefore for an arbitrary epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that mod of ft minus fx is less than epsilon provided, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, provided t minus x is less than delta. provided t minus x is less than delta. फिर देखिए let t minus x is equal to h, then from equation 1 comma we have 1 से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, आएगा मॉड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स इज लेस देन, अगर t माइनस एक्स इससे छोटा होगा तो कंडीशन 1 होल्ड होगी, इस केस में आपको मिलेगा एप्साइलन अपॉन एच इंटू एच। वन बाई एच पहले से था, ये क्वांटिटी लेस देन एप्साइलन बाहर आ गई, 1 को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, t लिमिट पुट करेंगे x प्लस एच माइनस एक्स, केवल क्या बचेगा h। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्साइलन। फिर वही चीज, सिंस epsilon is arbitrary and small, thus इक्वल टू 0 मानेंगे आप, ये इधर आएगा, मिलेगा मॉड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू एफ एक्स। लिमिट ले लीजिए, दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट ले नहीं सकते, रीज़न क्या है, क्योंकि एक्स एच नहीं है, इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज दैट, एक लाइन और है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यही आपको प्रूफ करना था।
हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लिखिए। लेट f be a continuous function on closed interval ab. Let f be a continuous function on closed interval ab and let phi be a differentiable function on closed interval ab and let phi be a differentiable function on closed interval ab such that phi dash x is equal to fx for every x belongs to closed interval ab. Such that phi dash x is equal to fx for every x belongs to closed interval ab. Then prove that integral a to b ft dt is equal to phi b minus phi a. देखिए ये इंटीग्रल कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है। लिखिए प्रूफ में लिखिए सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, then the integral function of small f, then the integral function of small f is defined by, then the integral function of small f is defined by fx is equal to integral a to x ft dt for every x belongs to closed interval ab. अभी पीछे पढ़ा आपने कि इस कंडीशन में ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। f डैश x इज इक्वल टू एफ टी। लिखिए नीचे से इज डिफरेंशिएबल एंड f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1, एंड f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ आपको दिया गया है कि फाई डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स। नीचे से लिखिए बट इट इज गिवन दैट फाई डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन नंबर 2। बट इट इज गिवन दैट फाई डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स, इक्वेशन नंबर 2। कंबाइंड कर दीजिए दोनों को। देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट f डैश x इज इक्वल टू फाई डैश x। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी गेट f dash x is equal to phi dash x. This implies that d by dx of fx is equal to d by dx of phi x. This implies that d by dx of fx minus phi x is equal to 0 for every x belongs to closed interval ab. इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन इंटीग्रेशन कॉमा वी गेट। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एफ एक्स माइनस फाई एक्स इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0, साथ में एक कांस्टेंट c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी एंड एफ ए इज इक्वल टू फाई ए प्लस सी। दिस इम्प्लाइज
एफ बी इज इक्वल टू फाइव बी प्लस सी। क्या निकालना है, फाइव बी माइनस फाइव ए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। सी से सी क्या होगा, कैंसिल, इसको मान लीजिए 3। बट बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन, but by definition of integral function fb is equal to integral a to b ft dt and fa is equal to integral a to a ft dt। a to a ft dt की वैल्यू 0। thus from equation 3 मिलेगा इंटीग्रल a टू b एफ टी डी टी इज इक्वल टू 5b माइनस 5a। उतारे।